Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to the last video of this Kisco series. Actually, this is the last video, and after this video I will start the NEPRA past papers क्योंकि NEPRA की काफ़ी डिमांड्स आ रही थी, तो वो उनके पास्ट पेपर्स मैंने फिर इसके बाद स्टार्ट करने। इसके अलावा मैं हांडा की भी फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शायद उनकी वीडियोस भी कल से अपलोड हो जाए। तो हांडा की मैं फर्स्ट चैप्टर से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट सोल्यूशन के साथ मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है हांडा की स्पेशली कि सर प्लीज़ हांडा की सोल्यूशन को भी आप अपलोड कर दें। उनके कुछ चैप्टर्स को मैंने कवर कर चुका हूँ, पर ज़्यादातर चैप्टर्स में रहते हैं, तो वो मैं बहुत जल्द उनके सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट MCQs इज 73. An active load is a circuit that function as a current stable non-linear resistor. Identify which of the following statement is not correct. So first of all, you will need to understand what is mean by active load. So active load means load made up from active devices. Okay, it is the load made up from the active devices. Active devices में कौन कौन सा है? active devices में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर हो गया, that is also active device। इस तरह के बहुत सारे और हमारे पास active devices अगर इसमें हो तो that load is known as the active load. That function as a current stable non-linear resistor. Yeah, this is right. It work as a current stable non-linear resistor. और इस एक्टिव लोड को हम डायनामिक लोड भी कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम है डायनामिक लोड। सो अगर डायनामिक लोड वर्डिंग आ जाए पेपर में तो आपने वहाँ पे घबराना नहीं है। आपने एक्टिव डिवाइस का मतलब एक्टिव डिवाइस या डायनामिक लोड दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, यूज़ इंस्टेड ऑफ RC, अगर हम एक्टिव लोड को इंस्टेड ऑफ RC यूज़ कर लें तो इट विल इंक्रीज द AC गेन। येस, इट विल इंक्रीज द AC गेन ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए सर्किट इन विच आउटपुट रेजिस्टर रिमेन इन सैचुरेशन मोड, नो। In which output transistor remain in saturation? No, this will not always be in saturation mode. So this will be the wrong answer, but in this question this will be correct answer, क्योंकि उन्होंने कहा कि identify the statement which is not correct. Used for automatic testing of power supplies. Yes, as it is the active device, so that's why it is also used for the automatic testing of power supply. Commonly the output part of a current mirror. Yeah, this is also true. Okay, question number 74. Bipolar junction transistor BJT are dash device or FET are dash devices. So this is the current control devices and the FET is the voltage control devices. इन दोनों में आपने confuse नहीं होना, so option B will be the correct answer. Question number 75. Lissajous pattern of phase shift of two sinusoidal signal having same frequency is shown below. The phase shift theta is calculated as. Okay, इस तरह के स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिए जाए लिसाजियस पैटर्न में तो दिस इज़ नोन एज दी, इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। ये शायद आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा हो। तो यहाँ पे आपने अगर फेज शिफ्ट को फाइंड करना है तो इसके लिए आपने साइन फार्मूला यूज़ करने, साइन इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्रॉसिंग पॉइंट है ये आपका कितना है? दिस इज़ माई y1 विच इज़ गिवन टू मी, सो दैट्स विल बी y1 डिवाइड बाय दिस टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को? ये दिस टॉप पॉइंट, सो दिस इज़ y, तो डिवाइड बाय ये y आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल बी दी, through this formula you can find the phase shift. So option D will be the correct answer. Question number 76. In a transmission line fault, the voltage at the reallocation during fault is.
higher in magnitude than that during the pre-fault condition and also lag its pre-fault value? No. Less in magnitude than that during the pre-fault condition and also lead its pre-fault value? No. Less in magnitude than that during the pre-fault condition and also lag its pre-fault value? Yes. Higher in magnitude than so no, that will be also be the wrong answer. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपके जब फॉल्ट आ जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे, तो उस टाइम आपका जब फॉल्ट आ जाए तो उस टाइम आपका वोल्टेज होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यू कैन से वोल्टेज आपका कम हो जाता है। तो प्री फॉल्ट से पहले जो वोल्टेज है उससे वो वोल्टेज कम हो जाता है। तो लेस इन मैग्नीट्यूड दैन दैट ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट कंडीशन, और यहाँ पे ऑपोजिट हो जाते हैं। पहले जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें आपका रेटो होता है, उसमें आपका उस टाइम आपका करंट लैग करता है, बट प्री फॉल्ट कंडीशन में आपका करंट इतना हाई होता है कि ये लीडिंग में चले जाता है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज लैग करेगा। सो वोल्टेज आपके यहाँ पे लैग करेगा ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट वैल्यू। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, in three-phase systems, symmetrical faults are more severe than the unsymmetrical fault. Yes, obviously, because system voltage are unequal. No. In symmetrical, all voltage are same. System current are unequal. No. They involve all the phases. Yes. They involve two phases and a ground. No. So option C will be the correct answer. Question number 78, distance relay operate at fault when impedance seen is 100 ohm, infinite, less than the set value, larger than the set value. इसमें अक्सर एक्चुअली इस तरह होता है कि जब फॉल्ट आ जाते हैं तो फॉल्ट में क्या होता है, करंट काफ़ी हाई हो जाता है। करंट हाई हो जाता है तो एज वी नो दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस आपका कम हो जाता है। तो अगर इम्पिडेंस कम हो गया इज़ लेस दैन दी इम्पिडेंस ऑफ सेट वैल्यू, तो आपका ये आपका फॉल्ट, इट मीन्स के फॉल्ट आ गया और आपका जो रिले वो ऑपरेट हो जाएगा। अगर इफ़ द इम्पिडेंस इज़ ग्रेटर देन द सेट वैल्यू, तो इट मीन्स के नॉर्मल कंडीशन में फॉल्ट नहीं है इस टाइम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79, if the plug setting is 150% for a 5 ampere relay types, at what value of CT secondary current the relay will operate? तो इसको ये तो काफ़ी इजी है, 150% ऑफ 5 एम्पेयर आप फाइंड कर लो। दिस विल बी 1.5 टाइम्स 5 हो जाएगा, या आप इस तरह भी कर सकते हो इसको, ये 100% ऑफ 5 एम्पेयर प्लस 50% ऑफ 5 एम्पेयर। तो यहाँ से तो 5 आ जाएगा ऑब्वियसली, यहाँ से 50% ऑफ 5 विल बी को 2.5, वैसे आपके पास 7.5 एम्पेयर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। Okay, next MCQs is, if the line voltage of the delta connected generator is 400 volt, then the phase voltage is, so as this is the delta connected generator, so in delta connected generator your line voltage will be equal to your phase voltage, and in Y connected generator your line voltage will be equal to 3 square root times the phase voltage। तो यहाँ पे ये आपका 400 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, the power factor of the AC loads is always tried to bring to closer to zero. No, closer to unity. This will be the correct answer, क्योंकि पावर फैक्टर आपका क्या होता है, the angle between cos theta, where theta is the angle between voltage and current. If this is your voltage, तो आपका करंट भी इसी के ऊपर है, दैट्स विल बी द आइडियल कंडीशन, और इस टाइम आपका थीटा क्या होगा, दैट्स विल इक्वल टू 0, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट्स विल इक्वल टू 1। तो दिस इज़ द आइडियल कंडीशन। सो हमने कोशिश भी करनी है कि हमारे पास जो यहाँ पे ये अक्सर ये करंट लीड करता है या लैग करता है, तो ये एंगल को हम जितना मिनिमम कर सकते हैं तो उतना हमारे लिए बेस्ट होगा। अगर ज़्यादा होगा एंगल तो उतना पावर फैक्टर कम होगा। इसको आप जितना एक्स एक्सिस की तरफ ला सकते हो तो उतना आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ से भी एक्स एक्सिस की तरफ आपने लाने और ऊपर से भी एक्स एक्सिस की तरफ लाने, यानी एंगल को कम करने। जितना कम एंगल होगा उतना आपका पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, the rated kVA of a three-phase generator is 500. Its percentage impedance at rated base kVA is 10%. Determine its percentage impedance at a new base of 100 kVA। तो इसका फार्मूला है कि फार्मूला क्या है
इसका फार्मूला आपने यहाँ पे ये यूज़ करना है कि परसेंटेज इम्पीडेंस डिवाइड बाय बेस KVA, रेटेड बेस KVA, दैट्स इक्वल टू परसेंटेज इम्पीडेंस, इसको आप न्यू नाम दे दो, न्यू, और इसको आप ओल्ड कह दो, डिवाइड बाय न्यू बेस KVA। तो इसको आपने प्रॉपरली सॉल्व करने, तो ओल्ड हमारे पास क्या था, दैट इज़ 10%, तो 10 डिवाइड बाय हमारे पास KVA 500 था। न्यू ये मैंने फाइंड करना है, और न्यू बेस KVA हमारे पास 1000 KVA है। तो ये परसेंटेज इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स 10 विल इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 500, ये कट जाएंगे तो आपका 20% आ जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट MCQ is 89. If the plug setting is 50% for 5 ampere relay type, determine the plug setting multiply PSM when the CT secondary current is 100 ampere। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक वेल नोन फार्मूला यूज़ करना है प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई के लिए, कि आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, दैट्स इक्वल टू IF फॉल्ट करंट ऑन CT सेकेंडरी साइड डिवाइड बाय रिले पिकअप करंट। तो यहाँ पे आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई दैट्स विल इक्वल टू, तो फॉल्ट करंट हमारे पास क्या है, सेकेंडरी साइड पे वो 100 एम्पियर है, और रिले पिकअप करंट क्या है, तो वो आपने फाइंड करने, तो 50% ऑफ 5 फाइंड करने, दैट्स विल गो 2.5। तो इनको आप सोल्व कर लो, इससे आपके पास 40 आ जाएगा। तो दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90. The purpose of using dash on power lines is to cause the conduction to ground of excessively high voltage that are caused by lightning strikes. High voltage disconnect switch no, high voltage circuit breaker no, electrical substation no। यहाँ पे एक ही इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइटिंग अरेस्टर, जो कि वेल नोन इंस्ट्रूमेंट है। In the AC system, calculation of current and voltage are done algebraically no, arithmetically no, both algebraically no, vectorially हम यहाँ पे करते हैं AC system में। Okay, question number 92. Wound insulation allowing bar wires to touch ground metal objects such as water pipe cause current breakage no, काफ़ी high current flow होगा उस टाइम, power loss no, current compensation circuit compensation no, short circuit होगा। This is the best answer. Okay, question number 93. For a 3-phase 6600 kVA 66 kilovolt generator, what is the value of the full load current per phase? So हमने full load current यानी phase current हमने find करने हैं, which is equal to power divided by phase voltage। तो हमारे पास जो given data होता है उसमें आपको या तो line current line power given होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि लाइन पावर, अगर फेस पावर है तो वो तो स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे इट मीन्स कि दिस इज माय लाइन पावर। तो आपका PL किसकी इक्वल हो जाएगा, VL/IL। सो दिस इज 6600 kVA, दैट्स इक्वल टू 66 किलोवोल्ट। IL हो जाएगा, तो IL आपका आ जाएगा 6600, तो ये आपका 100 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका जो लाइन करंट है दैट इज़ 100 एम्पियर, और हमारे पास जो फेस करंट है दैट्स इक्वल टू I लाइन करंट डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट, दैट्स इक्वल टू फेस करंट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, next MCQ is the magnitude of power constant in windmill depend on sunlight? No, this is the solar panel which depend on the sunlight. Gravitational force? No. Material of blades? No. Wind velocity? ये काफ़ी सेंसिटिव होता है वेलोसिटी के लिए, windmills जो होते हैं। इसमें एक्चुअली जो प्रॉपर फार्मूला होता है वो दैट्स इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 ρ a v क्यूब।
this is the density, this is the area, this is the velocity. तो क्यूब ऑफ वेलोसिटी थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो पावर में ह्यूज चेंज आता है, तो काफ़ी सेंसिटिव होता है वेलोसिटी के लिए। तो विंड वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, steel core aluminum conductor are used instead of aluminum conductors in transmission line to increase the conductivity of the line, to increase the tensile strength of the cable, reduce the capacitance of the line, increase the voltage handling capacity। तो इसमें स्टील हम बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ को हाई करने के लिए हम ये स्टील कोर को यूज़ करते हैं ACSR केबल में। क्वेश्चन नंबर 96, find the exact value of 405.6496 when divided by 384। सो इस टाइप के MCQs NTS वाले अक्सर टाइम वेस्ट स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए देते हैं, तो इनको आपने प्रॉपरली डिवाइड करना है 384 में, और इसमें फिर आपका ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द एवरेज मीन ऑफ दीज वैल्यूज़। तो इन सब को आप ऐड कर लो और इसको फिर डिवाइड कर लो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर लो तो आपके पास 19 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, price of a mobile phone is 8,000. A man has enough money to purchase 3 mobiles. How many mobiles can he purchase if the price is reduced by 2,000? इसमें एक ट्रिक है, थोड़ा सा काफ़ी केयरफुली आपने इस टाइप MCQs को सॉल्व करना है। इसमें एक्चुअली इन्होंने प्राइस ऑफ तो मैन हैज़ ओके सबसे पहले हमने मनी को फाइंड करने के मैन हैज़ मनी ऑफ 8,000 टाइम्स 3 कर लो तो दैट इज़ 24,000 रुपीज़। तो इट मीन्स के मैन हैज़ दिस मच मनी। नाउ हाउ मेनी मोबाइल्स कैन ही परचेज इफ़ द प्राइस इज़ रिड्यूस बाय 2,000। तो पहले 8,000 था, अब 2,000 उसमें रिड्यूस हो गया तो 6,000 अब मोबाइल का प्राइस है। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लो बाय 6, तो इससे आपके पास 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ही कैन ओनली बाय 4 मोबाइल फ़ोन if the price is reduced by 2,000. Option D will be the correct answer. Question number 99, second last question. If the ratio of newborn girls to boy in a particular hospital is 5:3, which of the following could be the number of children in the hospital? इस टाइप के क्वेश्चन में वो एक्चुअली इसलिए देते हैं, इसमें एक ट्रिक यूज़ हुआ होता है, उनको आपने अच्छी तरह से समझना है। इसमें क्या ट्रिक यूज़ हुआ है, इसमें आपको चिल्ड्रन को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसको दोनों को प्लस कर लेते हैं, लेकिन 8 आ जाता है, लेकिन 8 तो यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपने वो नंबर लेना है जो 8 से डिविजिबल ना हो। आप 244 डिवाइड बाई 8 कर लो तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। 150 डिवाइड बाई 8 को चेक कर लो, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, इसका आंसर भी पॉइंट्स में आएगा। 96 को 8 टाइम्स 1 इज़ 8 टाइम्स 1 इज़ 8 टाइम्स 2 इज़ 16, तो 12 आ रहा है। इसी तरह 60 को 8 से डिवाइड कर लो तो 8 के टेबल में 60 नहीं आता, तो इट इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 60 इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट MCQs ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल। दीज आर द एडजेसेंट साइड, तो ये तो पैरेलल नहीं है, क्रॉस कर रहे हैं। टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पेंटागन, पेंटागन मीन जिसमें 5 साइड्स हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इसमें भी पैरेलल साइड्स नहीं है। 2 रेडाई ऑफ द सर्कल, तो 2 रेडाई ऑफ द सर्कल में भी नहीं होता, एक ये रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हो गया, तो ये भी पैरेलल नहीं है। 2 ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो दिस इज द रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। So this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQs, then please put that MCQs number and that confusion in the comment box. I will answer you there. Thanks for watching. If you did not subscribe this YouTube channel, then please kindly subscribe this YouTube channel, and also please hit the like button. Thanks for watching. See you in next video. Allah Hafiz.